دے. اور جو یہ کہتے ہیں وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ایسا ہی چاہتے تھے کہ ہمارا رب ایسا ہو. وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں صراط الذین انعمت علیہم کی آیت ہے. تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ایسا بھی ہو جیسا ہم چاہتے تھے, جس میں سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عثمان غنی, حضرت عمر فاروق, امام حسن, امام حسین اور دیگر بہت سے صحابہ کرام, اور اس کے بعد تابعین, تبع تابعین, پھر آتے ہیں اولیاء اللہ. بہت عرصے کے بعد جو صحابہ کا مقام ہے, سب سے پہلا مقام صحابہ کرام کا, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا, پھر اس کے بعد ہے باقی چیزیں سب آگے آتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انہوں نے مولا کائنات فرماتے ہیں, اگر آج یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی مجھے یہ سمجھتا ہے, شاہ صاحب کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جب ہم نے مولا علی کی بات کی, ہم نے حسن حسین کی بات کی, اہل بیت کی بات کی, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ شیعہ ہے. اگر کوئی مجھے شیعہ سمجھتا ہے تو میں شیعہ ہوں, اور اگر کوئی مجھے سنی سمجھتا ہے تو میں سنی ہوں. تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور اس کی اتباع کرنے والے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے, جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے, ہمیں اس پر چلنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے, اور وہی صراط مستقیم ہے, وہی راستہ صراط مستقیم ہے. تو ان لوگوں نے جو سرکار کے دور میں تھے, انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو آمنا صدقہ کیا کہ اللہ کے نبی آپ سچ فرماتے ہیں, آپ امین ہیں, آپ سچے ہیں, آپ ایماندار ہیں, ہمیں آپ کی بات کو ماننا ہے, ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا کہ آپ غلط کہتے ہیں یا صحیح, اور آپ غلط کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو محبوب بنایا, جس کو کہتے ہیں کہ دو عشق ہوئے, ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا جس کے لیے کائنات بنا دی, دو عشق ہوئے, ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا, محمد رسول اللہ کو پیدا کیا تو کائنات بنا دی. دوسرا عشق حسین نے کیا کہ کائنات لٹا دی. دوسرا عشق امام حسین علیہ السلام نے کیا تو کائنات لٹا دی. تو عشق اتنی آسان چیز نہیں ہوتی. ہمیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں, سر کٹانے والے, بازو کٹانے والے, بیڑیاں پہننے والے اور بوریاں پہننے والے, کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے سائے میں نہیں بیٹھنا, کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے دھوپ سے نہیں اٹھنا, کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں اتنا عرصہ آپ نے نہانا ہی نہیں ہے, آپ نے پاک مطلب آپ نے ایک دفعہ وضو کر دیا, بس اب آپ کا ساری زندگی کے لیے, آپ نے وقت تک کے لیے آپ کا وضو ہو گیا. تو یہ ہے عشق کہ وہ اس میں فنا ہو جاتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے اس میں وہ فنا ہو جاتا ہے. پھر اس کا اپنی ذات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا, اس کا مطلب محض یہ ہوتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے. اب محبوب کا حکم سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے, نماز کی پابندی کرے. کوئی فقیر, کوئی ولی, کوئی درویش, کوئی قلندر, کوئی قطب, کوئی ابدال اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری نجات کرواؤں گا اور تمہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو ورنہ وہ قطب ہے, نہ وہ ابدال ہے, نہ وہ قلندر ہے, نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے حکم کی قبولی کون کر سکتا ہے؟ اللہ کو ماننے والا اللہ کا عاشق تو نہیں کر سکتا. اللہ کا عاشق تو وہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے پیغام بھیجا. تو آپ لوگوں کے لیے ایک آسان راستہ, بہت آسان ہے, میں نہیں کہتی ہوں, بہت ساری کتابیں ہیں اور آپ جیسے جانتے ہیں, بہت کچھ آپ لوگ جانتے ہیں. میڈیا نے, موبائل نے آپ کو اتنا فاسٹ کر دیا ہے کہ آپ کی اتنے سے موبائل کے اندر ہی ساری دنیا موجود ہے, اور ہم سب لوگ جو ہے نا وہ عقل کل ہو گئے ہیں. عقل کل کہ ہم کچھ نہ سمجھنا چاہتے ہیں, نہ جاننا چاہتے ہیں, نہ کسی استاد کی ضرورت ہے, نہ کوئی خدمت کی ضرورت ہے, نہ تابعداری کی ضرورت ہے, نہ آگے مسجد میں پہنچنے کی ضرورت ہے. سب کچھ آپ کے سامنے ہے, ٹک ٹک کریں گے اور وہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے, یہ آخری نشانی ہے. اس کے بعد کچھ اور باتیں رہ نہیں گیا. کسی بھی استاد کے بغیر, کہیں بھی تربیت کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تربیت استاد نے ہی کرنی ہوتی ہے.
मिले मैं आपकी एक खादिमा हूँ, ना आप समझे मैं आपकी माँ हूँ, ना आप समझे मैं आपकी दोस्त हूँ, आप समझे मैं आपकी एक अदनासी खादिमा हूँ। और मैंने इस फ़कीर के साथ जो वक्त गुजारा और जो मैंने देखा या मैंने समझा या मैंने पाया, तो मैं ये समझती हूँ कि उस शख्स ने कुरान को जब पढ़ा तो उसको उसकी एक एक हर्फ को समझा और कुरान को न सिर्फ पढ़ा बल्कि उस पर मुशाहिदात किए। ये बहुत मुश्किल बात होती है, मुशाहिदात किए। और सच्चाई की सबसे बड़ी दलील मैंने आपको कहा कि आप ना समझें, एक लम्हे के लिए आप ना समझें मैं आपकी माँ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक अदनासी खादिमा और करना चाहती हूँ। और सिर्फ मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सुरखुरी और आसानी के साथ जाऊँ और आप सब लोगों के लिए एक आसानी का ज़रिया बन जाऊँ, निजात का ज़रिया बन जाऊँ, मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाऊँ। मेरा अपना ज़ाती कुछ भी नहीं है, ना कल खाना आज है ना कल होगा, कुछ भी नहीं है। कुरान से नमाज के लिए आपको ये भी कहा जाता है कि आप लंबी नमाज ना पढ़ें, फजर में 2 फ़र्ज़ पढ़ लें, फ़र्ज़ पढ़ें। जो फ़र्ज़ है किसी सूरत भी आपके लिए माफ़ नहीं है। अगर बाप माफ़ नहीं करता, माँ माफ़ नहीं करती, बहन भाई माफ़ नहीं करते, रिश्तेदार माफ़ नहीं करते, 2 दिन 3 दिन आप खाना ना लेके जाएँ ना, बीवी की फरमाइश पूरी ना करें या माँ की फरमाइश पूरी ना करें, तो वह माँ आपको वासिला जहन्नम कर देगी दुनिया में। तो कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत है, मगर फिर भी आप उसकी 3 दिन उसकी जो है ताबेदारी ना करेंगे, उसके पास किसी भी मजबूरी के पेश नज़र या बीवी की ताबेदारी के पेश नज़र आप ना जाएं, तो वो कहेगी कि अच्छा आखिरत में बताऊँगी तुझे तेरा दूध भी माफ़ कर दूँ तो क्या माना। तो जो माँ, जो बीवी, जो बहन आप उसकी इतनी ताबेदारी करते हैं, वो रब जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपके लिए कायनात बनाई, जिसने आपके खाने पीने पहनने रहने सहने तमाम सहूलतों के इंतजाम किए, आपको सेहत दी, खूबसूरत आपको रहने के लिए जगह दी, तमाम आसाइशें दी, और वो अपने पास सिर्फ दिन में 5 बार बुलाता है, सिर्फ 5 बार बुलाता है आपका रब जिसने ये सब बनाया, जो आपकी हर चीज़ का मालिक है। निजात भी उसकी वजह से है और पकड़ भी उसी की वजह से है। सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ते रहे, माफ़ ना करे तो कोई माफ़ नहीं कर सकता, और सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहे, एक नेकी आपकी उसको काबिल कबूल हो जाए तो वो माफ़ करने वाला और दरगुजर करने वाला है। तो नमाज के लिए आप किसी भी सूरत ये ना सोचें कि कोई आपको माफ़ कर देगा। देख में जो आपके किना बुग़्ज़ हसद वो है, मेरा आपसे कोई ज़ाती मफाद किसी भी शख्स से नहीं है। मेरी जो भी बात है अपने रब के साथ है, रब के बाद सरकार दो आलम के साथ है और अहले बैत के साथ है और वारिस पाक के साथ, गौस पाक के साथ है। दुनिया वालों के साथ मेरी कोई बात नहीं है। वो बेशक मुझे अभी इसी वक्त में कुछ भी कर दें तो मैं अपने रब की रज़ा समझूँगी कि रब को ऐसा ही मंजूर था। तो आप लोग भी कम अज़ कम रातों को जागते हैं तो फजर पढ़ने के आदी हो जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फजर को बनाया ही इसलिए। फिर अल्लाह 5 बार इसलिए बुलाता है कि मेरी तारीफ़ करो, मेरी हम्दो सना करो। वो खुश होता है कि अच्छा ये मैंने बनाया था, देखो ये बंदा मेरे पास आया है, फरिश्तों में कहता है वो एजाज़ के साथ ये मेरा शुक्र अदा करने के लिए आया है, ये मेरी बंदगी के लिए आया है, ये मुझे राज़ी करने के लिए आया है, ये मुझे मनाने के लिए आया है, ये मुझसे कुछ मांगने के लिए आया है, मुझसे कुछ तलब करने के लिए आया है और अपनी आसानियों के लिए आया है, अपनी निजात के लिए आया है। इसको ये पता है कि मैंने वापस यहीं जाना है, इसी रब की बारगाह में जाना है, ये इसलिए आया है। तो वो फरिश्तों में फ़ख्र के साथ कहता है कि मैंने इसीलिए तो इंसान को सजदा करवाया था कि ये अशरफुल मखलूक़ात है, इसलिए कि मुझसे मोहब्बत करता है। अपनी मोहब्बत के लिए मैंने इसको बनाया था, अपनी मोहब्बत के लिए मैंने इसको बनाया। तो जब से हमने ये फजर की नमाज़ छोड़ी है कि सारी रात जागते रहेंगे, फजर हमसे नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है, तारीकी है। हम उसको बल्बों से, लाइटों से, LCD से, LD से, किस किस चीज़ से हम उसको रोशन करते हैं, मगर वो चाहे तो एक पल में ये सारी लाइटें LD और LCD और सब कुछ एक पल में ख़त्म कर दे और आपको हमें बता दे कि ये रात है और ये दिन है। उसे अगर वो बनाना चाहे तो कोई मिटा नहीं सकता, अगर वो मिटाना चाहे तो कोई बना नहीं सकता। तो अगर आप लोगों को पीर की मोहब्बत है और आप ये चाहते हैं कि आप पीर की बारगाह में सुरखुर होकर जाएं और आप ये समझते हैं कि आपके पीर का कोई मकाम है और आप ये चाहते हैं कि पीर अपने
दोस्तों में सुरखुर हो कि आप पीछे क्या दर्स लेके आए हैं, क्या तालीम लेके आए हैं, क्या बता के आए हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो आप फजर के लिए ज़रूर उठा करें। 2 फ़र्ज़ पढ़े सो जाएं, कोई बात नहीं, फ़र्ज़ तो आपने अदा कर लिए। इससे अगर पीर के मामलात आप लोगों की वजह से बढ़ेंगे तो आप लोगों की बेहतरी होगी। जब जिस वक्त आप चाहेंगे वो आपके पास हाजिर होंगे। रूह का रूह से ताल्लुक़ होता है, रूह का रूह से ताल्लुक़ होता है। तो आप नमाज की पाबंदी किया करें जैसे बाकी कामों की पाबंदी करते हैं। और दूसरी सहूलत मैं आपको ये भी बता देती हूँ, और शिया हज़रात को आप छोड़ दें, हज का एक सबसे बड़ा एक इज्तिमा होता है और सबसे बड़ी इबादत जो है वो हज है, जो मुश्किल तरीन भी है। मुश्किल तरीन है। आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आपकी सेहत होगी, आपके पास सहूलत होगी तो आप हज के लिए जाएंगे, वैसे आप जा ही नहीं सकते जितना मर्जी होते हैं सहूलतों के साथ। तो अल्लाह ताला ने वहाँ आपके लिए ये सहूलत रखी है कि ज़ोहर असर आप इकट्ठे पढ़ लेते हैं। असर का वक्त अभी नहीं होता, आप असर पढ़ लेते हैं। मगरिब का वक्त हो चुका होता है, चूँकि आप सफ़र में होते हैं तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप मुसल्ला में जाके मगरिब पढ़ने, हुक्म ही नहीं है। तो जब आप मुज़दलिफ़ा में पहुँचेंगे तो मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ेंगे, चाहे जितनी देर में भी पहुँचे, जितनी देर में भी पहुँचे। तो वो एक अहम रुकन है उसके अंदर। तो आपके लिए यह है कि अल्लाह तबारक ये बताना चाह रही हूँ कि माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। आप ज़ोहर के साथ असर पढ़ लें, मगरिब के साथ इशा पढ़ लें, इशा के साथ आप मगरिब पढ़ सकते हैं, आपकी क़ज़ा नहीं होगी। इतने उलमाए दीन जिन्होंने मौला अली से तरबियत ली, तो मेरी और आपकी बात गलत हो सकती है, मौला की बात गलत नहीं हो सकती। मौला की तालीम जो है वो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम की तालीम है। आपने अपने पास से कुछ भी नहीं फरमाया, जो कुछ अल्लाह के रसूल ने आपसे कहा उसी पर आपने अमल किया। तो मौला अली की तालीम जो है वो रसूलुल्लाह की तालीम है, तो ये गलत नहीं हो सकती। आपकी सहूलत के लिए ये है कि अगर आप असर में आपको पता है कि आप निकल रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपको असर नहीं मिलेगी, बहाना है, जा नमाज नहीं होगी, बहाना है, पानी नहीं होगा, तो आप ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ के साथ ही असर के भी 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, आपकी नमाज अदा हो जाएगी, क़ज़ा नहीं होगी। इसी तरह मगरिब है, अगर आपकी मगरिब क़ज़ा हो गई है तो आप इशा में पहले मगरिब अदा करें, फिर आप इशा अदा करें, तो वो मगरिब आपकी क़ज़ा नहीं होगी। ये मौला की नमाज है। तो मौला की नमाज दुरुस्त नमाज होगी, उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। और अगर आप वक्त पर पढ़ें तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मगरिब तो मगरिब के वक्त पढ़ें, इशा को इशा के वक्त पढ़ें, फजर को फजर के वक्त पढ़ें। मगर फजर के लिए कोई वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है कि आप फजर को ज़ोहर के साथ पढ़ लें, तो क़ज़ा ही होगी। फजर को आपने वक्त पर अदा करना है, इसलिए कि उस वक्त वो आपको वो पहले आसमान पर होता है और वो अपनी मखलूक को, अपनी तमाम मखलूक को जो जाग रहे होते हैं, हाँ किसी भी रंग में है, मगर सबको पता है कि सबका रब जो है वो अल्लाह ही है। सबका इस बात पे यकीन है। अगर वो पत्थर को पूजते हैं तो वो पत्थर भी रब को पूजता है, क्योंकि रब ने उसको बनाया, उसको बढ़ाया, उसके अंदर मखलूक को पैदा किया, छोटे छोटे कीड़ों को पैदा किया। तो पत्थर भी अल्लाह ही की बंदगी कर रहा है। अगर वो पत्थर को पूज रहे हैं, या वो पत्थर के जा बहुत सारी जगह आपने सुनी होगी, देखा होगा कि वो कोई फल लगता है जाके, कोई दाल लगता है जाके, कोई चावल लगता है जाके, कोई फूल लगता है जाके, उनका ये यकीन है कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो फल और फूल और वो नेमतें जो अनवा इक़साम उसके अंदर कीड़े पल रहे हैं, जो वहाँ आस पास मखलूक रहती है, जब वो खाती है, क्योंकि अल्लाह ने उनको पैदा किया है, जब वो खाती है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, तो वही दुआ आपके लिए काबिल कबूल हो जाती है। उनका वो खाया हुआ रिस्क आपके लिए काबिल कबूल हो जाता है। अब हम यहाँ पीर मोड़ा ये टेक्सला में एक पीर हैं, बहुत सारे वहाँ पहाड़ के दामन में हैं। वो तकरीबन 200-250 साल हो गए उस मज़ार शरीफ को। तो वहाँ मज़ार तो नहीं है, 5 पीरों की वो बैठक है। तो इस साल वहाँ पे आके बैठे रहे तो मुसलमानों का मुकाबला नहीं हुआ। तो वहाँ हम लेकर गए बहुत सारी दाल, बहुत सारे चावल, बहुत सारी चीनी, क्योंकि वो जो वहाँ पर मखलूक है वो वही खाती है, वो खाने वाली है। पहाड़ के ऊपर डाले, पहाड़ के दामन में डाले, दरख्तों के नीचे डाले। तो इसका मकसद ये हुआ कि जब उस मखलूक का पेट भरा, मखलूक तो अल्लाह ताला की है, और जो भी ज़मीन पर आया है उसको ज़मीन वालों ने ही रिस्क देना है। रिस्क अल्लाह की तरफ से आता है, मगर वो ज़मीन वालों के दिल में डालता है। अगर आप एक पौधा भी लगाते हैं तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से वो तनावर होता है,
मगर आपने उसकी देखभाल करनी है। अगर आप उसकी अच्छी देखभाल करेंगे वो आपको अच्छा फल देगा, अच्छा साया देगा। तो अगर सुबह फजर की नमाज, अगर आप ये चाहते हैं आपकी बीमारियां दूर हों, आपकी तकलीफ़ें दूर हों, आपकी परेशानियां दूर हों, और आपका रब आपको सुबह के वक्त बुलाता है, तो कोई पीर, कोई फ़कीर, कोई वली आपके लिए निजात का ज़रिया नहीं बन सकता। फजर आपको खुद ही पढ़नी है, पर आप फजर पढ़ने की आदत डालें। अगर मुमकिन हो तो कुरान पाक को खोलना, पढ़ना, देखना, सुनना सब सवाब है। एक रुकू पढ़ लें तो, मगर आपने उसकी किताब को खोला तो है, देखा तो है, चूमा तो है। अगर एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का नाते आप घर में भी बहुत सारे सुन लेते हैं, तो मैं तो ये अल्लाह का पैगाम आपके पास इसलिए कि मेरा वक्त बहुत कम है और ये चाहती हूँ कि जो कुछ मैं उसका पैगाम पहुँचा सकूँ खुद सुरखरू हो जाऊँ और मेरे लिए ये राह निजात का ज़रिया बन जाए। मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है, कोई मामला नहीं है कि आपकी समझ में बात आती है या नहीं, या आप उस पर अमल करते हैं या नहीं। तो मगर मुझे ये पता है कि ये वक्त मैंने, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 42 मरतबा यासीन, 111 दफ़ा मुज़म्मिल शरीफ और बाकी अपने तमाम वज़ाइफ, सूरतें, जो 40 सूरतें मेरे मामूलात में होती हैं, और तमाम जिक्र करके, तो सिर्फ मैं बातें करने के लिए आपके पास नहीं आई हूँ। वो उस मामूलात में, वो मेरे मामलात हैं, उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाए। वो मेरा और रब का मामला है। आप लोग ये सोचें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, अल्लाह करे हमारे साथ भी इसी तरह का मामला हो कि एक शख्स है और बहुत गंदा मंदा नापाक, बहुत बुरी उसकी हालत, और पड़ा है तो पड़ा है, सोया है तो सोया है, फटे हाल हैं। लोगों ने भी उसको रांदे दरगाह किया हुआ है। लोग तो बहुत जल्दी करते थे ना, मगर अब किसी को इतने जल्दी रांदे दरगाह नहीं करता। वो एक एक रूप उसने बनाया है तो उसकी एक एक हरकत को सकनात को देखता है। तो वो मर गया बेचारा। जब वो मरा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने बुलाया और फरमाया कि मूसा, फलां बस्ती में मेरा एक बंदा है, वो मर गया है, वो मेरा मुकर्रिब बंदा है। क्या है? मेरा मुकर्रिब बंदा है। ए मूसा, मेरा वो मुकर्रिब बंदा है, और जाओ तुम उसकी तजहीज़ व तकफीन करो। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश के कौन सा मुकर्रिब बंदा है जिसकी मुझे ज़ियारत होगी, जिसको मैं जाके देखूँगा, जिसके लिए अल्लाह तबारक ताला मुझे पैगाम दे रहा है कि जाओ उसको, उसकी तजहीज़ व तकफीन तुम अपने हाथों से करो जाके। आप उस बस्ती में पहुँचे और आप कहते हैं कि यहाँ ना कोई अल्लाह का मुकर्रिब बंदा कोई मर गया है, तो जहाँ जाए वो कहें कोई ऐसा मुकर्रिब बंदा नहीं है। तो उन्होंने कहा अल्लाह का कोई बहुत जिक्र करने वाला, अल्लाह का कोई बंदा। तो कहा कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई परहेजगार जिसको तुम कभी कभी बाहर निकलता हो, कि कोई ऐसा नहीं है। फिर भी फिरे फिरते रहे। तो आपने फरमाया, जब मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए कि कौन सा ऐसा मुकर्रिब बंदा है जिसका इन लोगों को नहीं पता, कि जिसके लिए अल्लाह तो मुझे भेज रहा है, अपने नबी को भेज रहा है कि जाके तजहीज़ व तकफीन करो, और इलाके के लोगों को पता नहीं है कि कौन सा वो अल्लाह के करीब है। तो अल्लाह तबारक ताला, मूसा परेशान हुए। फिर कहा कि अच्छा, फिर आप गए कोहे दूर पे, या अल्लाह मैं तो वहाँ सब जगह मैंने ढूंढ लिया, मुझे तो वहाँ तो कोई बंदा, कोई कहता नहीं है कि यहाँ कोई तेरा मुकर्रिब बंदा है, कोई पाक बंदा है, तेरी इबादत करने वाला, तेरी बंदगी करने वाला, कौन है ऐसा? तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, मूसा फिर जाओ तुम्हें मिल जाएगा, और उनसे कहना कि उस बस्ती में जाना और कहना कि कोई बंदा मरा है यहाँ। जब आप गए और आपने वहाँ लोगों से कहा कि पूछा आज कोई बंदा मरा है, तो उन्होंने कहा कि मरा तो है। फिर कहाँ है वो? तो कहा कि वो इतना गंदा था, बुरे हाल थे उसके, बाल बिखरे हुए, मट्टी में लदा हुआ, और कोई काम हमने तो उसका कोई ऐसा अमल मूसा हमने नहीं देखा, और आप उसके लिए आए कि वो अल्लाह का मुकर्रिब बंदा है। तो आपने फरमाया कि अच्छा मुझे बताओ, मुझे ले चलो, कहाँ है वो? तो वो कहते हैं उस बंदे जो आज मरा है, हमने तो उसे कूड़े के ढेर पे फेंक दिया, हमने उसे कूड़े के ढेर पे फेंक दिया। आप पहुंचे वहाँ उन लोगों के
साथ जब वहाँ पहुँचे बहुत रंजीदा हुए, आबीदा हुए और उसको उठाया। जब अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगम्बर, अल्लाह का चाहने वाला, अल्लाह से हम कलाम होने वाला कलीमुल्लाह जब वहाँ पहुँचे तो मखलूक खुदा क्यों ना जाए। तो जब वहाँ पहुँचे उसको वहाँ से उठाया, उसकी तजहीज़ व तकफीन की। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, उसकी तजहीज़ व तकफीन की और एक जब में गफीर हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, उसकी नमाज जनाजा हुई, बहुत इज्जत के साथ उसको दफनाया गया। आपने उसकी नमाज जनाजा अदा की उसके लिए। अब जब वापस आए तो कहते हैं या अल्लाह, बज़ाहिर तो उसका कोई ऐसा अमल नहीं था, लोग बहुत हैरान परेशान थे कि ये हमने इसको कभी इबादत करते नहीं देखा, कभी हमने इसको कोई ऐसा हमने तो किसी अच्छी हालत में इसको कभी देखा नहीं। और आप ये फरमाते हैं कि ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मूसा, अब हम मेन बात की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मूसा, ये इबादत गुजार भी नहीं था, बंदगी भी नहीं करता था, नमाज भी नहीं पढ़ता था, मगर जो मेरी किताब थी ना तौरात पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब ये उस किताब पे मोहम्मद का नाम को देखता था तो उस किताब को चूमता था, उस मोहम्मद के नाम को चूमता था। मुझे इसका ये अमल बहुत पसंद आया कि ये मेरे महबूब के, इसे खबर भी नहीं है कि कौन है, मगर इसे मोहम्मद इतना पसंद आया कि जिस साल में भी था तो मैंने इसको अपने मुखलिफ बंदों में शामिल कर दिया। अल्लाह करे हम गंदे मंदे लोग हैं, नापाक, गुनाहगार, सियाहकार, झूठे, मक्कार, सब कुछ, मगर अल्लाह ताला हमें यही समझे कि हमने अगर एक बार मोहम्मद के नाम को चूमने वाला मुकर्रब हो गया बारगाह में उसकी, और जन्नत का वो मालिक हो गया और पैगम्बर को उसकी तजहीज़ व तकरीम के लिए भेज दिया, तो अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग फजर के पाबंद नहीं हैं वो अपने रब को नाराज़ ना करें। अपने रब के लिए औलिया अल्लाह, तमाम औलिया अल्लाह ने यही कुरान पढ़ा है, इसी से हर चीज़ को ताबे किया है, इसी से अपने आप को कामयाब किया है। और कोई पहले होता है, कोई बाद में होता है, किसी पर एक नज़र पड़ती है तो उसके आगे हर चीज़, मगर वो चीज़ ही उसकी कामयाबी का जरिया बन जाती है कि उसकी नज़र से उन पे नज़र जब जम जाती है जिसका नहीं फिर कोई नज़र नहीं। तो अल्लाह ताला ने आपको जिस फ़कीर के साथ, जिस वली के साथ, और एक और बात सुनाना चाहूँगी कि जब मैं ये समझती हूँ कि उस फ़कीर ने जहान में जहान गश्त इनको कहने, पाकिस्तान में कोई गांव, कस्बा, शहर ऐसा होगा, मियाँ वाली चले जाएं, कोयटा चले जाएं, पंजाब की तरफ आ जाएं, सिंध की तरफ आ जाएं, हैदराबाद है, ठट्टा है, जो भी कोई जगह है, तो कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ इन्होंने हज़रत ने कदम पोसी का इर्शाद हासिल ना हुआ होगा। मगर आपके सामने यहाँ पर यही बात है कि जितने भी सच्चे लोगों की मैंने रिवायात पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी हैं, मुशाहिदात में आई हैं, उनका यही है कि कम लोग भी वहाँ पर पहुँचे होते हैं। मौला अली की जब शहादत हुई है उस वक्त भी ऐसा ही था कि कितने अरसे तक लोगों को यही नहीं पता था कि मौला की तदफीन की जगह कौन सी है, आपकी कब्र मुबारक कौन सी है। बीबी का मैं और आप, शहजादी कौन है, हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मेरी और आपकी माँ, मालिक जन्नत, मलका कौनैन, रहमत आलम। तो जब उनका विसाल हुआ तो उनका भी ऐसा ही है कि आज तक वो मुअम्मा हल ना हो सका, आज तक ये मुअम्मा हल ना हो सका कि बीबी के कब्र मुबारक कहाँ है। हर कोई अपने प्रयास करके ये कहता है कि यहाँ है, जन्नतुल बकी में है। जिस जन्नतुल बकी का वाक़या इस तरह है कि आपने मुझे वसीयत की थी कि अली आप मुझे रात की तारीकी में दफनाना और ज़्यादा लोगों को मत बुलाना। तो रात की तारीकी में बहुत लोग
जनाजे में आ जाए तो उसको निकाला नहीं जाता, जैसा भी हो, दुश्मन हो या दोस्त हो, और वो जनाजे में शामिल होगा तो चूँकि बीबी की वसीयत थी कि मेरे जनाजे में फलां फलां जो है वो शामिल ना हो। तो जब लोग, बहुत से लोगों को जब पता चला तो हैरान हुआ, तो लोग आए तो आपने फरमाया, मौला अली ने फरमाया कि ना, नमाज जनाजा में ताख़ीर है तो आप लोग चले जाएं। फिर दोबारा से आए, फिर ताख़ीर का ऐलान किया आपने, तो चले गए। गोया कि आप नहीं चाहते थे कि लोग इसमें शामिल हों और उस तजवीज़ व तकलीफ को देखें जिन्होंने इतनी अज़ियत दी। अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए। तो जन्नतुल बक़ी के अंदर 70 कब्रें बनाई गई आपकी, 70 कब्रें। अब 70 कब्रों में क्या आप इंकशाफ करेंगे कि बीवी की कौन सी होगी? ताज़ा कब्रें भी, और कि ये महसूस ना हो कि कौन सी है, भाई देख लो, निकाल लो, जिसमें भी है। और आप अपने हुजरे में, या तो कहा जाता है कि जहाँ मिंबर रसूल है वहाँ आपकी तदफीन हुई, वहाँ आपका हुजरा था, या आपके करीब भी गुंबद खिजरा के पास। ये दो जगह तो मस्जिद नबी में कही जाती है, और बाकी 70 कब्रों का इंतशाफ जो है वो ये है कि जन्नत नबी में बनाई गई। तो आप किस खबर पे जाएंगे और कहाँ से उतरेंगे? कि अल्लाह ताला ने उनके राज को राज रखा कि उन्हें अज़ियत देने वाले, तकलीफें पहुँचाने वाले कोई बाहर से ऊपर की मखलूक नहीं आएगी, हम उड़ा देंगे। अब जब हम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो वहाँ हमारी माफ़ी तलाक़ी की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए जब रात को आप लेटें और आप ये इस बात का एहसास किया करें कि आज सारा